إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ألم نجعل له عينين ولسانا وشفتين وهديناه النجدين فلاقتحم العقبة وما أدراك ما العقبة فك رقبة أو إطعام في يوم ذي مسغبة يتيما ذا مقربة أو مسكينا ذا متربة. حضرات، اسلام کی تعلیمات میں سے ایک یہ بھی ہے کہ ہر مسلمان دوسرے کے لیے فائدہ مند ہو، دوسروں کو نفع پہنچائے، فائدہ پہنچائے. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا من خیر الناس، تو آپ نے فرمایا انفع الناس للناس، کہ سب سے بہتر انسان کون ہے؟ تو آپ نے فرمایا جو لوگوں کے لیے سب سے زیادہ مفید ہو وہی سب سے بہتر ہے. یہ اسلام کی بنیادی تعلیمات میں سے ہے کہ ہر فرد، مسلم سماج، معاشرہ، مسلمانوں کی عدالتیں، مسلمانوں کی حکومت، مسلمانوں کے سارے کاروبار اس طرح ہوں کہ ایک دوسرے کے لیے مفید ہوں، اور صرف اپنے ہی لیے نہیں، خاص طور پر مسلمانوں کے لیے مفید ہوں، ساتھ ہی ساتھ تمام بنی نوع انسان کے لیے مفید ہوں. اسلام کی تعلیم ہے. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دین و نصیحہ، دین کسے کہتے ہیں؟ آپ نے ایک لفظ میں بیان فرمایا نصیحہ، لوگوں کے لیے خیر خواہی آپ کریں، لوگوں کے لیے اچھا سوچیں، لوگوں کے لیے بھلا سوچیں، لوگوں کے لیے اچھا کام کریں، لوگوں کے لیے بھلا کام کریں. کہا اس کا نام دین ہے. انسان کے تعلقات اللہ سے ہوتے ہیں اور اللہ کے بندوں سے ہوتے ہیں. بندوں سے جو تعلقات ہوں اس تعلقات میں سب سے اہم کام یہی ہے کہ ہر مسلمان اپنے آپ کو اس طرح ثابت کرے اپنے قول کے ذریعے، اپنے عمل کے ذریعے، اپنی سوچ کے ذریعے کہ وہ دوسروں کے لیے مفید ہے. اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا کہ ہم نے انسان کو دو آنکھیں دیں، زبان عطا کیا، ہونٹ دیے. اس بات بیان فرمایا کہ اتنی بڑی نعمتیں ملی ہوئی ہیں، ان نعمتوں کی شکر گزاری کے نتیجے میں انسان کو چاہیے کہ اس کا ایک انداز بنے، اس کا ایک سسٹم بنے، اس کی زندگی کا ایک طرز بنے. اور کیا ہے وہ؟ انسانی تعلقات کی دنیا میں اللہ تعالیٰ کے ساتھ انسان جو تعلق ہے وہ لمبی تفصیلات ہیں، لیکن انسان کا ایک دوسرے انسان سے کہ تعلق ہو، چاہے وہ مسلم سے ہو، غیر مسلم سے ہو، تو اس کی بنیادی چیز یہ ہے الدین النصیحہ. لوگوں کے لیے اچھا سوچو، لوگوں کے لیے اچھا کرو. یہاں اچھائی کی ایک شکل قرآن کریم میں یہ بیان فرمایا اللہ تعالیٰ نے فلاقتحم العقبہ وما ادراک ما العقبہ. انسان کی زندگی اسٹرگل کا نام ہے، اور سب سے بڑا اسٹرگل کیا ہے؟ فلاقتحم العقبہ وما ادراک ما العقبہ فک رقبہ. پہلی چڑھائی کا انسان کی گردن اگر پھنسی ہو، مسلمان کی گردن اگر پھنسی ہو تو اس کی گردن کو آزاد کرانا. گردن پھنسی ہو مطلب کیا ہے؟ انسان مصائب کا شکار ہو، قرض کا شکار ہو، بھوکمری کا شکار ہو، ناتوانی کا شکار ہو، بیماری کا شکار ہو، مظلومیت کا شکار ہو. بے شمار شکلیں ہو سکتی انسان کی، صرف قرض ہی کا مسئلہ نہیں. اور خاص طور پر اس وقت جو انسان کے لیے تباہی بربادی کا زمانہ ہے، فتنوں مشاکل کا زمانہ ہے، آج انسان کا دین فتنوں کا شکار ہو جاتا ہے، اس کی شخصیت فتنوں کا شکار ہو جاتی ہے، وہ خود فتنوں کا شکار بن جاتا ہے. کبھی بلائیں ہیں، کبھی مصیبتیں ہیں، کبھی ظلم ہے، کبھی ستم ہے، کبھی آفتیں ہیں، کبھی مشکلات ہیں. ڈھنگ ڈھنگ کی مصیبتوں میں انسان آج گرفتار ہوتا ہے.
तो फ़क़ रक़बा इंसान की मुसलसल जो चढ़ाई है, जिद्दोजहद है मंजिल को हासिल करने के लिए, अल्लाह की रज़ा हासिल करने के लिए, उसमें सबसे पहली मंजिल यह है फ़क़ रक़बा, गर्दन आज़ाद करना। गर्दन आज़ाद करने की तफ़सीलात आपने सुनी, देखा और रोज़ देखते रहते हैं। बड़े से बड़े, मालदार से मालदार हालात पैदा होते हैं तो इंसान मुहताज बन जाता है। आज इसी दौर में देखिए, कोरोना के मसाइल में या जो इस वक्त माशी मुश्किलात हैं, उसमें कितने ऐसे हैं जो बेमईशत हो गए हैं, बेरोज़गार हो गए हैं, घर में बैठे हुए हैं, कितनों को ऐसा रोज़ी रोटी छिन गई है। ये मुश्किलात हैं, ये गर्दन फंसी हुई है, ये कि फ्लड आते हैं, सैलाब आता है, ढंग ढंग की परेशानी आती रहती हैं। इंसान जब मुसीबत में शिकार होता है उसकी गर्दन फंस जाती है। बसा औकात इस तरह वो मुश्किलात का शिकार हो जाता है कि ज़िंदगी उसके लिए तंग हो जाती है। सारी दुनिया अपनी वुसअत के बावजूद उसके लिए तंग हो जाया करती है। ये मुश्किलात हैं, मुश्किलात हयात आज इस कदर बढ़ गए हैं, इतने मुतनव्वे हैं, ढंग ढंग के हैं कि कभी भी किसी इंसान के लिए ये खदशा लगा रहता है कि वो आसमान से ज़मीन पर गिर जाए, वो अपनी खुशहाइसी से लेकर तंगदस्ती में मुब्तला हो जाए। कभी एक्सीडेंट हो जाता है, कभी परेशानियाँ हो जाती हैं और ढंग ढंग की इंसान आज मर्ज का शिकार होता है। मर्ज की कोई कमी है? बेशुमार किस्म की मुश्किलात और मर्ज इस वक्त पैदा हो गए हैं। तो आज इंसान की गर्दन जिस तरह फंसी हुई है उसकी मिसाल पहले नहीं मिलती है। बेशुमार किस्में होती हैं मुश्किलात और परेशानियों की। एक मुसलमान के लिए ज़रूरी है कि उसके अंदर शजाअत हो, बहादुरी हो, उसके अंदर हिम्मत हो, हौसला हो, उसके अंदर गैरत व हमीयत हो, उसके अंदर जोश व तड़प हो कि दूसरों को परेशानी देख करके वो तड़प जाए, दूसरों को मुश्किलात में फंसा देख करके वो आगे बढ़े और मुश्किलात से निकालने की कोशिश करे। और ये कोई वक्ती मसला नहीं है, ये मुश्किलात मुसलसल आते रहते हैं। इसलिए हमेशा लोगों को तैयार रहना चाहिए कि इन मुश्किलात से निकालने के लिए, इंसानियत को परेशानियों से निकालने के लिए इंसान अपने आप को तैयार रखे। तो पहला मसला ये रब करीम बयान फरमाते हैं। और ताबीर देखिए, कहा फ़क़ रक़बा और कहा फ़लक़्तहम रक़बा वमा अदराका मा रक़बा। कहा ये दूसरों की मदद करना कोई आसान काम नहीं होता है, ये बहादुर लोग कर सकते हैं, हिम्मत हौसले वाले कर सकते हैं। जिस तरह घाटी और चढ़ाई पर इंसान को मशक्क़त करनी पड़ती है, इस तरह मशक्क़त करनी पड़ती है, तब इंसान जाकर दूसरे के लिए हमदर्द बन सकता है, तब इंसान जाकर दूसरे के लिए खरपाई का जज्बा पैदा कर सकता है अपने अंदर, तब इंसान दूसरों के लिए खर्च कर सकता है, दूसरों के लिए सोच सकता है, दूसरों के लिए भलाई के लिए इंतज़ाम कर सकता है। तो ये मशक्क़त काम होता है। तो पहली शक्ल अल्लाह ताला ने बताई कि इंसान दूसरों के लिए जो काम आ सकता है, मुफीद बन सकता है। सबसे बड़ी बात जामे लफ्ज़ में बयान फरमाया, फ़क़ रक़बा, गर्दन को आज़ाद करना, मुश्किलात से इंसान को निकालना। और इतामुन फ़ी यौमिन ज़ी मस्ग़बा, जब भुखमरी का इंसान शिकार हो जाए उस वक्त लोगों को खाना खिलाना। आपने देखा कोरोना के माहौल में गुज़िश्ता साल जब शुरुआत हुई लॉकडाउन में, किस तरह सारी हिंदुस्तान में अफरा तफरी फैली और किस तरह इंसानियत बिलखती चीखती रही, एड़ियाँ रगड़ कर मरते रहे, भूख प्यास का शिकार हुए और अल्लाह ताला ने जिनको तौफीक दी, खुलकर लोगों ने मदद भी की। तो ये एक मिसाल थी। ये चीज़ें पैदा होती रहती हैं, इंसान की ज़िंदगी की कहानियाँ हैं कि इंसान इस दुनिया में है तो कभी खुशी में है, कभी गम में है, कभी परेशानी में है, कभी आराम है, कभी खाने को मिल रहा है, कभी खाने को भी नहीं मिल रहा है। तो ये सूरत हाल है, इंसान के साथ लगी हुई है। और इसके पीछे हिकमत इलाही है कि इंसान को अगर यकसानियत की ज़िंदगी मिल जाए तो सारे के सारे सरकश और मुतमर्रिद बन जाएंगे और अल्लाह का नाम लेना भूल जाएंगे। इसलिए चीज़ें लगी रहती हैं और इसी को दो लफ्ज़ में ताबीर किया गया है। एक मोमिन की निशानी बताई गई है कि अगर इंसान को कोई परेशानी होती है तो सब्र करता है, और अगर उसको खुशहाइसी हासिल होती है तो वो शुक्रिया अदा करता है। तो ज़िंदगी की मुसलसल दो रास्ते होते हैं, परेशानी की, मुसीबत की। तो अल्लाह ताला ने बयान फरमाया, और इतामुन फ़ी यौमिन ज़ी मस्ग़बा, जब लोग भुखमरी के शिकार हों तो इंसान को चाहिए कि घर में इत्मीनान से नहीं बैठे, खाना खिलाए। वो भुखमरी आम हो, और आम भुखमरी होती भी है भाई। आज ये एहसाइयात आते रहते हैं कि दुनिया में 40 करोड़ से ज़्यादा लोग भुखमरी के शिकार रहते हैं, और उनको इस हिंदुस्तान ही में कहा जाता है कि इतने लोग भुखमरी के शिकार रहते हैं।
न्यूट्रिशन उनको मुकम्मल मिल नहीं पाती है, ग़िज़ाइयत उनको मिल नहीं पा रही है। तो ये सब चीज़ें तो आम हैं दुनिया में, सारे रोज़ हमारे सामने इस तरह की मुश्किलात आते रहते हैं। तो खाना खिलाना आम भुखमरी हो, ये कि शादो नादिर हो, पास पड़ोस में हो। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बयान फरमाया, अगर एक मुसलमान खाना खा रहा है, उसका पड़ोसी भूखा सो रहा हो, तो उसके अंदर ईमान की शान नहीं है, उसके अंदर एक मोमिन की सिफत मौजूद नहीं है। इसलिए समाज माशरे में रहते हुए हर आदमी मुसलमान की खूबी यह है कि अगर दूसरों के लिए इस्लामी तालीम के मुताबिक नफा वक्त बनना चाहता है तो वो बेहोशी का शिकार नहीं हो सकता है, गफलत का शिकार नहीं होता है। दूसरों के बारे में भी खबर रखे, पास पड़ोस के बारे में खबर रखे, रिश्तेदारों के बारे में खबर रखे, कहीं वो भुखमरी का शिकार नहीं है, परेशानी का शिकार नहीं है। और मिस्कीनन ज़ामत रबा इतामुन फी यौमिन ज़ी मस्ग़बा और मिस्कीनन ज़ामत रबा और यतीमन ज़ामत रबा और मिस्कीनन ज़ामत रबा। कहा तीसरी शक्ल अल्लाह ताला ने यह बयान किया कि अगर कोई यतीम है, आपका क़राबतदार है, तो उसके बारे में फ़िक्र करो, उसको खाना खिलाओ। यतीम के बारे में तफसील के साथ अल्लाह ताला ने बयान फरमाया है, रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बयान फरमाया है कि यतीम समाज और माशरे का सबसे कमज़ोर उन्सुर होता है। उसके ऊपर मस्कनत तारी होती है, उसके साये से माँ का या बाप का या दोनों को साया उठ जाए तो समाज और माशरे में सबसे ज़्यादा बेसहारा इंसान हुआ करता है, बेसहारा उन्सुर होता है। और वो समाज और माशरे के चैलेंज होता है कि उसको मानने वाले कितने मौजूद हैं, उसके करीबी कितने हैं और उसके दूर के कितने लोग हैं जो उसके खैर ख्वाह हों। ये समाज और माशरे के लिए यतीम चैलेंज होता है, चाहे बच्चा हो या बच्ची हो, कि लोग आजमाइश होता है, वो अल्लाह ताला की तरफ से देखा जाता है कि इंसानों के अंदर कितनी हमदर्दी है, कितना लोगों के अंदर शफ़क़त व मोहब्बत का जज्बा है, कितना लोग दूसरों की मदद करने के लिए तैयार हो सकते हैं। तो समाज माशरे में यतीम वो आजमाइश होते हैं, समाज व माशरे के लिए इम्तिहान हुआ करते हैं। तो अल्लाह ताला ने ख़ास तौर पर यहाँ जिक्र किया। और क़राबतदार यतीम, अगर यतीम है और आपका क़राबतदार है, आपका रिश्तेदार है, आपका खूनी रिश्ता उससे है, तो उसके लिए ख़ास तौर पर एहतमाम करना होता है कि कभी भूखा न सोए। और मिस्कीन ज़ामत रबा, ऐसा मिस्कीन जिसके पास न सर पर साया हो, कोई ठिकाना ना हो रहने सहने का, मिट्टी पे लेट रहा हो, सो रहा हो, फुटपाथ पर जिंदगी गुजार रहा हो। कहा अगर ऐसे यतीम मिस्कीन मौजूद हैं, मिस्कीन वो जो अपनी गुर्बत और परेशानी को झेल रहा है लेकिन उसके अंदर खुददारी है, और दूसरों से कहता नहीं है, रोता गिड़गिड़ाता नहीं है, बल्कि खुद झेल रहा होता है। तो कहा ऐसे लोगों के बारे में, एक मांगने वाला तो आपके सामने हाथ फैलाता है, आपके सामने आजिज़ी गिरियाजारी करता है, रोता गिड़गिड़ाता है, फरियाद करता है, उसकी अलग बात है, सब जानते हैं उसकी परेशानी, उसकी लोग मदद करते हैं। लेकिन ऐसे के बारे में खबरगिरी करना जिसके साथ खुददारी है और वो किसी के सामने हाथ नहीं फैलाता है और उसके सर पर साया भी नहीं है, तो समाज माशरे की जिम्मेदारी बनती है उसके बारे में पता करे, उसके बारे में मालूमात हासिल करे, उसकी मदद करे, खबरगिरी करे। तो ये कंसेप्ट है इस्लाम का कि आप चार चीज़ों के यहाँ गिनाया गया, तो चारों चीज़ें समाज और माशरे में इंतहाई दर्जे के कमज़ोर लोग होते हैं, जिनके हवाले से अल्लाह ताला ने तालीम दी कि आप समाज और माशरे में दूसरों के लिए मुफीद बन कर रहे हैं, आप गफलत के शिकार न बने। तो ये तो हुआ इस्लाम में कंसेप्ट कि दूसरों के लिए मुफीद बने। मुफीद किस हद तक बने और मुफीद किस तरह बने? मुफीद सिर्फ एक ये नहीं है कि आप किसी की माली परेशानी को दूर फरमाएं, बल्कि इस्लाम में मुफीद होने का तस्वूर ये है कि आप समाज और माशरे का हर फर्द दूसरों के लिए मुफीद हो, राय के ज़रिए, मशवरे के ज़रिए, मदद के ज़रिए, सही बात बताने के ज़रिए, दावत व तबलीग के ज़रिए, तालीम दे करके जिस तरह भी आप दूसरों के को नफ़ा पहुंचा सकते हैं आपको नफ़ा पहुंचाना। और रोज़मर्रा ताल्लुकात में भी, रोज़मर्रा आप लोग मिलते जुलते हैं एक दूसरे से, उसमें ताल्लुकात में भी स्टैंडर्ड बता दिया गया है कि आपकी अखलाकियात इतनी ऊंची होनी चाहिए, आपका मोरल इतना हाई होना चाहिए कि आपकी ज़ात से किसी तरह दूसरों को दुख ना हो, आपकी किसी एक बात से किसी को तकलीफ ना हो। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बयान फरमाया, अल मुस्लिमु मन सलिम अल मुस्लिमून मिन लिसानिही व यदिही, एक मुसलमान की खूबी ये होती है उसकी ज़ात से किसी मुसलमान को तकलीफ ना हो। तकलीफ की हज़ारों शक्लें होती हैं। आप
दूसरों के ऊपर ज़बरदस्ती अपने को मुसल्लत करें, आप दूसरों पर जबर करें, आप माली तौर पर दूसरों को नुकसान पहुँचाएँ, आप अपनी ज़बान की वजह से दूसरों को तकलीफ पहुँचाएँ, गाली दें, ये तमाम शक्लें हो सकती हैं। तो रसूल करामी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बयान फरमाया कि आप समाज व माशरे में रहते हों, पीसफुल हों, अमन और सुकून के साथ रहते हों, दूसरे लोगों को इत्मीनान हो कि आपके साथ से जर्रा बराबर उसको कोई तकलीफ नहीं हो सकती है, उसकी आबरू पर आंच नहीं आए, उसकी शख्सियत पर दागदार न बनाएं, उसके बारे में गलत फहमी न करें, उसके बारे में गलत बात न फैलाएं, उसके बारे में झूठ न बोलें, उसकी गीबत न करें। ये सारी शक्ल ये है कि अगर ये चीज़ें मौजूद ना हो तो उससे इंसान को अमन सुकून और शांति मिलेगी। दो तरफा रसूल करामी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बयान फरमाया कि जितनी सल्बियात होती हैं, जितनी निगेटिव चीज़ें हो सकती हैं जो इंसान को अजियत का सामान बनाएं, उससे भी बच जाएं। और ये कि दूसरी तरफ ये कि खैर के जितनी शक्लें हो सकती हैं, अच्छाई की, हुस्न सलूक की, बर्ताव की, अदब व एहतराम की, दूसरों की शख्सियत को तस्लीम करने की, दूसरों को के साथ अच्छे अखलाक से पेश आने की, सच्चाई की, अमानतदारी, ईमानदारी, सारी चीज़ें जो हो सकती हैं उसके साथ बर्ताव करना, ये इस्लाम का कंसेप्ट है कि दूसरों के लिए मुफीद बने। और फिर ये कि मेयार भी रसूल करामी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुतय्यन फरमा दिया। अल्लाह ताला ने भी कहा एक मुसलमान इस हद तक भी दूसरों के लिए मुफीद बन सकता है। वो युसिरूना अला अनफुसिहिम वलौ काना बिहिम खसासा, आपकी ज़रूरत है लेकिन आप अपनी ज़रूरत को रोक दें और दूसरों को ज़रूरत पूरी कर दें। मनफात बख्शी का ये मेयार है कि आप अपनी ज़रूरत को टाल दें, आप खाना न खाएं, दूसरे को खाना खिला दें, आप अपनी ज़रूरत रोक कर दूसरी को ज़रूरत पूरी कर दें, आप तिजारत कर रहे हैं दूसरों को आगे बढ़ाने के लिए मौका दे दें। कहा ये इशार की बात भी हो सकती है, दूसरों के लिए नफा बख्श इस तरह भी हो सकते हैं कि अपनी ज़रूरत पूरी रोक करके दूसरों को ज़रूरत पूरी कर दें, दूसरों का ताउन करें, दूसरों का हेल्प करें, दूसरों को आगे बढ़ाएं, दूसरों को मौका दें कि वो भी अपनी खस्ताहारी से निकले। सारे सराय हो सकते हैं दूसरों को फायदा पहुंचाने के। और ये भी फरमाया रसूल करामी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कि आप लन तनालुल बिर्र हत्ता तुनफिकू मा तुहिब्बून, ये एक मेयार ये भी मुतय्यन किया दूसरों के लिए नफा बख्श होने का कि आप वो चीज़ खर्च करें जो आपको सबसे ज़्यादा प्यारी हो। ये आला मेयार बयान फरमाया दूसरों के लिए मनफात बख्श होने के लिए। सारी दुनिया में किस मज़हब में तालीम दी गई है कि अपनी ज़रूरत पूरी करें। अगर मेयारी मुसलमान बनना चाहते हैं तो आप अपनी ज़रूरत रोक कर दूसरों की ज़रूरत पूरी करें। अगर मेयारी मुसलमान बनना चाहते हैं तो आप वो चीज़ दूसरों को देने की कोशिश करें जो आपको सबसे ज़्यादा प्यारी हो। तो साहबे कराम ने इस सब पर अमल करके दिखा दिया है। और हमेशा उम्मत में ऐसे लोग हमेशा रहे हैं जो इस तरजीही तौर पर अपनी ज़िंदगी गुजारते हैं कि अपनी ज़रूरत रोक कर दूसरी को पूरी करो, दूसरी को पूरी करो, हत्ता कि सारी ज़िंदगी उन्होंने दूसरे को मदद में लगा दी। और रोज़मर्रा ज़िंदगी में आप देखें कि हर किसी के काम आने, हत्ता कि आप जा रहे हैं और रास्ते में कांटा पड़ा हुआ है, उसको आप हटा दे तो रसूल करामी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया इमाततुल आज़ानी तरीक़े सदका, रास्ते से कांट तकलीफ दे चीज़ें हटा देना वो भी सदका है। हत्ता कि किसी को बोझ उठवा दें वो भी सदका है। किसी से खुशी से मिल लें, रसूल करामी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया कि नफ़ा बख्शी का ये भी एक उसूल है और ये भी एक तरीका है कि आप तबस्सुम कफ़ी वजह अखी का सदका, आप दूसरों से मुस्कुरा के मिलें, खुशदिली से मिलें, मोहब्बत से मिलें, अखलाक करीमा से मिलें, तो ये भी सदका है, ये भी मनफात बख्शी का एक तरीका है। तो ये मेयार भी रसूल करामी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बयान फरमा दिए कि आप ऊंचे से ऊंचा मेयार हो सकता है दूसरों को फायदा पहुंचाने का, और कम से कम तर दर्जा भी हो सकता है। और कम से कम तर दर्जा ये भी है कि अगर किसी के पास कुछ भी नहीं है, खजूर का एक टुकड़ा बल्कि आधा टुकड़ा अगर किसी को दे देता है तो वो भी सदका है। और ये भी अल्लाह के रसूल ने बयान फरमाया, बुखारी की रिवायत है कि अगर इस तरह नेक नियति के साथ इंसान काम करता है तो वो उसको अल्लाह ताला इतना बढ़ाते हैं कि आधे टुकड़े को खजूर के पहाड़ बराबर बना देते हैं, इतनी नेकियां मिलती हैं। हत्ता कि एक सही सोच हो अगर आपके पास अगर सही सोच हो दूसरों को फायदा पहुंचाने का, तो वो भी अल्लाह के यहाँ काबिल कबूल है और वो भी सवाब का काम बन जाता है। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बयान फरमाया 4 किस्म के लोगों का, एक आदमी आलिम भी होता है, मालदार भी होता है, वो अपने इल्म से भी लोगों को फायदा पहुंचाता है, अपने माल से लोगों को फायदा पहुंचाता है। कहा वो
دنیا کا سب سے خوش نصیب انسان ہوتا ہے، سب سے زیادہ ثواب کمانے والا انسان ہوتا ہے۔ ایک دوسرا عالم ہوتا ہے، اس کے پاس علم ہوتا ہے، اپنے علم سے دوسروں کو مستفید کرتا ہے، فائدہ پہنچاتا ہے، اس کے پاس دولت نہیں ہوتی ہے، لیکن اس کی خواہش ہوتی ہے کہ اس کو بھی دولت ملے اور اسی طرح خرچ کرے جیسے دولت والا عالم بھی خرچ کر رہا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ اس کی اس خواہش کو بھی قبول فرما لیتے ہیں اور اس کو اتنا ثواب ملتا ہے جتنا عالم کو ثواب ملتا ہے۔ حسنیت دیکھ لیجیے، صحیح سوچ صحیح سمجھ دیکھ لیجیے کہ اگر صحیح سوچ موجود ہے، صحیح سمجھ موجود ہے تو آدمی صحیح کام کرنے کے برابر بھی ثواب پا جاتا ہے۔ دوسری طرف اللہ کے رسول نے بیان فرمایا، ایک مالدار آدمی ہوتا، دولت اس کے پاس خوب ہوتی ہے اور وہ اناپ شناپ خرچ کرتا ہے، غلط کاموں میں خرچ کرتا ہے، اس کو گناہ ملتا ہے اور گناہ حد سے زیادہ اس کو ملتا ہے۔ دوسرا آدمی ہوتا ہے اس کے پاس دولت نہیں ہوتی ہے اور خواہش مند ہوتا ہے کہ مجھے بھی دولت مل جائے اور اسی طرح میں بھی خرچ کروں اناپ شناپ غلط طریقے پر، کائی سوچ کی بنیاد پر، غلط سوچ کی بنیاد پر اس کو بھی اتنا ہی گناہ ملتا ہے جتنا غلط طریقے پر خرچ کرنے پر دولت والے کو گناہ ملتا ہے۔ تو یہاں سوچ کو بھی اگر صحیح سوچ ہو، اچھی سوچ ہو تو صحیح سوچ اچھی سوچ کی بنیاد پر بھی انسان وہ سارے نیکیاں کما لیتا ہے جو نیکی کام کرنے والے کو ملتا ہے۔ تو یہ کنسپٹ اسلام میں جو نفع پہنچانے کا ہے، آپ اندازہ لگائیے کتنا جامع ہے۔ یہ ریلیف پہنچانا، مدد پہنچانا، آرام پہنچانا، صرف یہ اسلام میں مال پہنچانے ہی کی بات نہیں ہے۔ دولت سے دوسروں کو جتنا آرام ہو سکتا ہے، ریلیف پہنچا سکتے ہیں پہنچائیں، لیکن پورا ایک کامل کنسپٹ ہے کہ آپ اپنے اخلاق، اپنے رویے، اپنی سوچ، اپنے طور طریقے سے بھی دوسروں کے لیے مفید بنیں اور آپ کی ذات سے کسی کو تکلیف نہ ہو۔ آپ بتائیے اگر اس کامل کنسپٹ کو مطابق اگر ایک مسلمان زندگی گزارے تو وہ دوسروں کے کتنا مفید بن سکتا ہے۔ کہیں کسی جگہ اگر یہ کنسپٹ پوری طور پر لوگوں کے لیے ہدایت بن جائے اور اس کے مطابق لوگ عمل کریں تو پورے سماج و معاشرے میں کسی طرح کا لڑائی جھگڑا فتنہ فساد الجھن پریشانی ہو ہی نہیں سکتی ہے۔ پورا امن سماج و معاشرہ بن سکتا ہے، بہترین مثالی اور ماڈل سماج و معاشرہ بن سکتا ہے۔ تو یہ تعلیمات اسی لیے ہیں کہ مسلمان ایک مثالی فرد بنے، مثالی سماج بنے، مثالی معاشرہ بنے۔ سماج و معاشرے میں ظلم و زیادتی ہوتی ہے، ظلم و زیادتی کے مطالب کو ختم کرنا بھی نفع بخشی کا سب سے بڑا کام ہوتا ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، انصر اخاک ظالم و مظلوما، اپنے بھائی کی مدد کرو، اگر وہ ظالم ہے تب بھی مدد کرو، اگر مظلوم ہے تب بھی مدد کرو۔ صحابہ نے پوچھا اللہ کے رسول اگر ظالم ہے تو اس کو تو روک دیا جائے، فرمایا کہ ظالم کی مدد کیسے ہے؟ کہا ظالم کی مدد یہ ہے کہ ظلم سے اس کو روک دو، اور مظلوم کی مدد یہ ہے کہ اس کو ظلم نہ کیا جائے اور ظالم کے ظلم سے اس کو روک دیا جائے۔ تو یہ ہے نفع بخشی کا طریقہ۔ سماج معاشرے میں ظلم و زیادتی زیادہ ہوتی ہے اور ہر طرف فتنہ و فساد پھیلتا ہے۔ اگر عدالتیں موجود ہوں اور صحیح طور پر وہاں فیصلے ہوں تو سماج معاشرے میں کتنا ریلیف ملے، کتنا آرام ملے، اور لوگوں کی جو ظلم و زیادتیاں ہوتی ہیں، چاہے مالی ہوتی ہو، چاہے مجرمانہ قسم کی سرگرمیاں ہوں، سب پر پابندی لگ جائے۔ اسلام میں جو عدالت کا تصور ہے وہاں آسان سا ہے، اور یہ کہ ہر ایک کو انصاف ملے، اور انصاف خواہ آپ کے اپنا آدمی ہو یا غیر ہو، حتیٰ کہ دشمن بھی ہو، اس کو بھی انصاف ملنا چاہیے۔ اسلام میں کنسپٹ موجود ہے۔ اب اندازہ لگائیے جس سماج و معاشرے میں انصاف ہو اور ہر ایک کو انصاف ملے اور بغیر خرچ کیے ہوئے انصاف ملے۔ اسلام میں عدالت حاصل کرنے کے لیے، اسلام میں حق حاصل کرنے کے لیے کوئی پیسہ خرچ نہیں ہوتا۔ اسلامی عدالتیں اس لیے ہوا کرتی ہیں کہ صحیح طور پر لوگوں کو فیصلہ دیں، نہ یہاں وکیل کا جھنجھٹ ہوتا ہے، نہ اور دوسری مصیبتیں ہوتی ہیں جو آج کے زمانے میں سیکولر عدالتوں میں ہوتی ہیں۔ یہاں اسلام یہ ہے کہ انصاف سماج و معاشرہ سب مل کر پھیلائیں۔ سب کو چاہیے کہ ہر آدمی کھڑا رہے۔ قوموا قوامین للہ شہداء بالقسط، اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ ایک مسلمان سماج و معاشرے کی پہچان یہ ہے کہ کہیں کسی پر ظلم نہ ہونے دیں اور ہر آدمی انصاف کے لیے کھڑا ہو جائے۔ اگر آپ کے سامنے
अगर किसी मोहल्ले में, पड़ोस में, चौराहों में, किसी जगह भी अगर जुल्म हो रहा हो तो एक मुसलमान की शान ये है कि वो खड़ा हो जाए जुल्म को रोकने के लिए, अपनी निगाहों के सामने जुल्म न होने दे। सबसे बड़ा नफा पहुंचाने का तरीका ये है। आज हर तरफ जुल्म ही जुल्म है, और मुसलमान जब इस कंसेप्ट पर अमल करते थे तो सारी दुनिया में उनको क़ियादत और सियादत हासिल थी। लेकिन जब वो खुद कमज़ोर हो गए, जब अपने समाज और माशरे को इंसाफ देने के लायक नहीं रह गए, जब अपने पड़ोस में इंसाफ नहीं कर सकते थे, जब अपने घर वालों के इंसाफ करने की ताकत नहीं रह गई, जब हर फर्द इंसाफ के दायरे से निकल गया, हर आदमी खयानत भूल गया, अमानतदारी भूल गया, खाइन बन गया, हर आदमी गलतकार बन गया, हर आदमी जालिम बन गया, हर आदमी जब्र करने वाला बन गया, तो आज आप देखिए मुसलमान क्यों पीछे हैं। मुस्लिम समाज माशरा का मिशन यह भी था कि समाज में इंसाफ दो, चाहे अदालतों के जरिए, चाहे पास पड़ोस में, चाहे रोजमर्रा जिंदगी में। लेकिन जब मुसलमान इंसाफ देने के लायक नहीं रह गए तो अल्लाह ताला ने पीछे हटा दिया। इल्मी एतबार से भी नहीं रह गए, अदल और इंसाफ देने के लिए अदालतें इनकी नहीं रह गई, तालीम के हिसाब से पीछे हो गए, साइंस के हिसाब से पीछे हो गए, टेक्नोलॉजी के हिसाब से पीछे हो गए, हर चीज में पीछे हो गए, तो अल्लाह ताला ने पीछे ढकेल दिया। आज हम महकूम हैं, दूसरे हमारे बारे में फैसला करते हैं। नताइज देखिए कि जो कंसेप्ट दिया इस्लाम ने कि लोगों के लिए नफा बख्श बनो, हर मुसलमान नफा बख्श बने, हर फर्द नफा बख्श बने, समाज माशरा, हुकूमतें, अदालतें सब दूसरे के मुफीद बने। लेकिन जब मुसलमानों ने इस कंसेप्ट को भुला दिया तो उसका नतीजा ये हुआ कि अल्लाह ताला ने इनको सबसे पीछे कर दिया। आज हर जगह जुल्म और ज़्यादती, खोरेजी, लड़ाई झगड़े, फितने, फसाद मुस्लिम ममालिक में, मुस्लिम कंट्रीज में, मुस्लिम समाज माशरे में सबसे ज्यादा है। क्यों है ये? क्या इसे अलर्टअप हो गया है? नतीजा ये है कि जब हमने अपने फराइज और जिम्मेदारियों को भुला दिया, जो इस्लामी तालीम और कंसेप्ट था कि इंसाफ दो, लोगों को फायदा पहुंचाओ, जब फर्द भी इसके लायक नहीं रह गया, जब समाज भी इस लायक नहीं रह गया, जो हुकूमतें भी इस लायक नहीं रह गई, तो अल्लाह ताला ने पीछे ढकेल दिया और उन लोग काफिरों को मुसल्लत कर दिया हमारे ऊपर। आज सूरत हाल ये है कि हमारे बारे में सारे फैसले कुफ्फार करते हैं। हम कैसे तालीम दें, कुफ्फार फैसला करेंगे। हम कैसे कमाएं, कुफ्फार फैसला करेंगे। हम कैसे समाज माशरे में रहें, कुफ्फार फैसला करेंगे। अब सारे कुफ्फार हमारे बारे में फैसला कर रहे हैं। उसकी वजह यही कि हम इस लायक रह ही नहीं गए कि इंसानियत के लिए मुफीद बन सकें। जब हम इस लायक नहीं रह गए लोगों के लिए इंसाफ फराहम कर सकें, तो अल्लाह ताला ने पीछे ढकेल दिया और उन लोगों को ले आया जो मजमूई एतबार से दूसरों के लिए मुफीद बन सकें, अपने इल्म के जरिए, अपने साइंस के जरिए, अपनी इजादात के जरिए, अपने कोर्ट कचहरियों के जरिए। तो अल्लाह ताला ने उनको मुसल्लत कर दिया। ये दुनिया क़यामत तक चलने वाली है। और ये उलमा ने फरमाया है कि अगर एक मुस्लिम हुक्मरान है और जालिम है तो उसकी हुकूमत नहीं चल सकती है, और एक काफिर हुक्मरान है अगर इंसाफ करता है तो उसकी हुकूमत चल सकती है। अल्लामा इब्न तैमिया के बहुत मशहूर मक़ूला है, वो कुरान सुन्नत की रोशनी में है कि दुनिया में इंसाफ इंसान के लिए भूख और प्यास से ज्यादा जरूरत होती है इंसान को इंसाफ मिले। इंसान को जब इंसाफ मिलता है तो उसकी शख्सियत सरसब्ज़ शादाब रहती है, उसकी शख्सियत जिंदा रहती है, वो आज़ादी महसूस करता है, वो अपने आप को ताकतवर तवाना महसूस करता है, वो अपने आप को खुश खुर्रम महसूस करता है। लेकिन जिस समाज माशरे में जुल्म होता है तो शख्सियतें कुम्हला जाती हैं, समाज माशरा में टूट फूट पैदा हो जाती है, लोग अपने बारे में मंसूबा नहीं बना सकते हैं, लोगों के अंदर तवानाई नहीं रह जाती है, लोगों के अंदर कुव्वत नहीं रह जाती है, ज़मीर मर जाते हैं, इंसानियत सिकुड़ जाती है जब जुल्म ज़्यादती होती है। आज मुसलमानों के अंदर लोग पूछते हैं कि मुसलमानों की सलाहियत को क्या हो गया है, तो बात यही बनती है कि फर्द भी इंसाफ का रखवाला नहीं रह गया है, फर्द भी दूसरों को फायदा पहुंचाने की सलाहियत खो चुका है। इसलिए हमारी सारी सलाहियतें टूट फूट गई हैं। हम कोई भी काम करते हैं ज्यादा आगे बढ़ नहीं पाते हैं, हम किसी मैदान में जाते हैं पीछे रह जाते हैं। इसलिए कि वो रसूल ग्रामी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो कंसेप्ट दिया कि अनफउन्नास लिन्नास खैरुन्नास अनफउन्नास लिन्नास, सबसे बेहतर वो है जो सबसे ज्यादा लोगों में नफा पहुंचाए। आज ये चीज खत्म हो गई, दूसरों क्या चीज मौजूद है। किसी भी कम्युनिटी को देख लीजिए, हिंदू कम्युनिटी को देख लीजिए,
सिख कम्युनिटी को देख लीजिए, क्रिश्चियन कम्युनिटी को देख लीजिए, वहाँ तालीमी एतबार से, रफाई एतबार से, समाजी एतबार से आज वहाँ जितना ज़्यादा दूसरों को फ़ायदा पहुँचाने की सकत है, सलाहियत है, कोशिशें हैं, आज वो हमारे अंदर मौजूद नहीं। हमारे यहाँ बिखराव है, टूट फूट है, बिगाड़ है, फसाद है, एक दूसरों की ताकत काटी है, एक दूसरों के खिलाफ साजिशें हैं, मुआमरत है। आज हम इस माहौल में ज़िंदगी गुजारते हैं। इसका नतीजा ये है कि हम मिल करके एक न ताकत बन सकते हैं, न हमारी सलाहियतें परवान चढ़ पा रही हैं, न हम दूसरों के लिए मुफीद बन पाते हैं। हम दूसरों के लिए ज़्यादा से ज़्यादा अजियत का सामान बने हुए हैं। पड़ोस में हैं तो अजियत का सामान बने हुए हैं, तिजारत में है तो अजियत का सामान बने हुए हैं, तंजीमें चलाते हैं तो अजियत का सामान बने हुए हैं, किसी भी मैदान में है तो अजियत का सामान बने हुए हैं। सिर्फ उठा पाटक और लड़ाई और फितने और फसाद ने हमारे हमारे दिलो दिमाग में जड़ें जमा चुकी हैं। इसका नतीजा ये है कि आज हमारे सामने ये है कि हम शिकस्त खुर्दा, कमज़ोर, परेशान, गुर्बत, मुताजी, सारी बलाएँ हमारे ऊपर टूट पड़ी हैं। अल्लाह ताला हम सबको तौफीक अता फरमाए कि हम दीन को सही तौर पर समझें। इस्लाम की जो तालीम है कि हर फर्द नफ़ा बख्श बनकर ज़िंदगी गुजारे, उसी तरह हम ज़िंदगी गुजारने की कोशिश करें। इलाहुल आलमीन हमारी हालत पर रहम फरमा, हमारी परेशानियाँ दूर फरमा दे, हमारे दिलों को मिला दे, हमारे टूट फूट को ख़त्म कर दे, हमारी तफरकाबाजियों को दूर फरमा दे। इलाहुल आलमीन जहाँ मुसलमान मजलूम हैं उनकी मजलूमियत ख़त्म फरमा दे, उनको आराम सुकून पहुँचा। जहाँ वो लड़ाई झगड़े फसाद मौजूद हैं, अल्लाह ताला उन तमाम लड़ाई झगड़े फसाद को ख़त्म कर दे और मुसलमानों को आफियत अता फरमा दे। तो आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। इन्नल हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुह व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना। मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिल फला हादिय लहु। व अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु व अशहदु अन्न मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। इन्नल्लाहा व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। इन्ना सलाता